If you want to live in favor, stop your mouth from speaking evil of anyone. Amen. Amen. नहीं, वो सोचते हैं मैं उपवास रख दूंगा, आपका उपवास आपके मुंह को ढांपेगा नहीं. They think I will fast, but your fasting will not cover your mouth. फरीसी लोग हफ्ते में, हर हफ्ते, हमने तो 21 दिन करा, आपने उसके बाद आप अगले साल करोगे, मगर फरीसी तो हफ्ते में 3 दिन हर हफ्ते करते थे उपवास. We fasted 21 days, now you'll fast next year, but Pharisees used to fast 3 days every week. हर हफ्ते 3 दिन का उपवास, Every week 3 days fasting. यानी हर महीने 12 दिन का उपवास. That means 12 days every month. अब सोचो, और यीशु मसीह ने जब उनको देखा तो बोला शैतान के बच्चों. And when Jesus saw them, he said, children of devil. काफी सीरियस हो गया माहौल. मैं आपको वो सिखा रहा हूं जो आपके जीवन में सच में बदलाव लाएगा. I am teaching you that which will truly change your life. एक प्रोटोकॉल है राजा का फेवर पाने का. There is a protocol to get favor अगर from the king. सीख गए उसका फेवर पाना, इतनी ब्लेस लाइफ जियोगे इस पृथ्वी पे, इतनी ब्लेस लाइफ जियोगे, आपकी जनरेशंस आपको ब्लेस कहेंगी. If you will learn to receive favor, you will live a blessed life and your generations will be blessed. Amen. आप कितने लोगों ने एस्तर पढ़ा है, एस्तर की पुस्तक? How many of you have read the book एस्तर of Esther? में राजा अहसुरस जो था, उसने वस्ती उसकी वाइफ थी, उसको बुलाया. King Xerxes called his wife Vashti. उसने कहा मेरे को नहीं आना. She said, I will not come. जानते क्या हुआ? You know what She happened? was cut off from favor. वो तरफदारी से काट दी गई, अलग कर दी. This is not a democracy. I don't like it. ये लोकतंत्र नहीं है, मुझे पसंद नहीं है. जो ऑर्डिनेंसेस परमेश्वर ने अपने वचन में लिखी हैं, he is not asking your opinion about it. The ordinances that the Lord has mentioned in His Word, वो आपकी राय नहीं मांग रहा उनके बारे में. This is his ordinance. ये उसकी ऑर्डिनेंस है. I don't like it, pastor. मुझे पसंद नहीं है पास्टर. Okay. ठीक है. You can, until you honor the decree of a king, you cannot walk in his favor. जब तक आप एक राजा की घोषणा का आदर नहीं करोगे, उसकी तरफदारी में नहीं चलोगे. Amen. Do you know the 12 apostles? They were not volunteers. जो Jesus 12 ने, okay, Jesus didn't say, okay, I am about to do something great. I will heal the sick, cast out demons. Who among you are interested? They say, me. Jesus said, okay, you look good. ये ज़्यादा चिल्ला रहा है. You come. He didn't say that. 12 जो प्रेरित थे वो वॉलंटियर नहीं कर रहे थे. यीशु ने नहीं कहा कि मैं चमत्कार करने वाला हूँ, बीमारों को चंगा करने वाला हूँ, कौन कौन आना चाहता है, तो उस लोग चिल्लाने लगे तब चुना. ऐसा नहीं है. When an invitation comes to you, you either accept it or you reject it. There is no third thing. जब न्योता आता है तो या तो ग्रहण करते हो या ठुकराते हो. तीसरा रास्ता नहीं कोई. Amen. आप समझ रहे हैं मैं क्यों आपको ये बात बोल रहा हूँ? कि आप ईसाई धर्म में ना हो, आप समझो किंगडम को. So that you will not be in the religion called Christianity, but और you जब will आप understand. फेवर में चलोगे ना तो दुनिया देखेगी उसको. कोई छुपा, फेवर के चलने वाले छुप नहीं सकते. When you will walk in favor, the world will see. People who walk in favor, nobody can unsee it. It's not hidden. आप छुपा नहीं सकते उसको. You cannot hide. हर तरफ से फेवर दिखाई देगा. Favor will be seen, visible on मैं all डिक्लेयर sides. करता हूँ, इतना फेवर खुदावंद उड़ेले आपके जीवन में कि आप कहो मेरा प्याला उसके फेवर से उमड़ रहा है. I decree that the Lord God would pour out such favor on your life that your decrees would be, my cup is overflowing with His favor. Amen. Hallelujah. Now, I want to tell you something. मैं कुछ बताना चाहता In His kingdom, हूँ. उसके राज्य. आपको आज एक तरीका बता रहा हूँ. I'm telling you a way. This is how I have found favor. ऐसे मैंने तरफदारी पाई है. Okay. All throughout the day, I keep telling him, "You are my king, and you are the most benevolent king." मैं दिन भर में उसको कहते रहता हूँ कि तू मेरा राजा है और तू सबसे ज्यादा दयालु राजा है. Because you are my king, and I am in your kingdom.
क्योंकि तू मेरा राजा और मैं तेरे राज्य में हूँ and you're the best king. और आप सबसे अच्छे राजा हो। You will take the best care of me. आप सबसे अच्छा ख्याल रखोगे मेरा। And he does. और वो करता है। Amen. Recognizing that Jesus is the king in this kingdom. ये पहचानना कि यीशु राजा है इस राज्य में। Amen. आमीन। This word kingdom जो बेसिलिका वर्ड है, जो किंगडम है, इसका मतलब है किंग्स डोमिनियन। इस शब्द का अर्थ है राजा का जो राजस्थान, राज्य का प्रभुता स्थल है। या प्रभुता है। Now think this. If I am in a king's dominion who is Jesus and his dominion is in my life, then in his dominion sickness has no dominion. अगर मैं उस राजा यीशु की प्रभुता के अधीन हूं तो उसकी प्रभुता में बीमारी नहीं है। इस बात को आप समझो। इंडिया में जो अमेरिकन एम्बेसी है, आप जानते हो अमेरिकन एम्बेसी है, उसके अंदर इंडिया के लॉ काम नहीं करते। The American embassy inside India, the Indians law do not apply there. वहां अमेरिका का डोमिनियन है, अमेरिका के लॉ है। The American laws and dominion works there. सो जब आप परमेश्वर के राज्य के अंदर आ जाते हो ना, जहां कोई मृत्यु नहीं, कोई बीमारी नहीं, तो बाहर कुछ भी चल रहा है, आपका जीवन अनटच रहेगा उससे, क्योंकि आप उसके राज्य के अंदर हो। When you come inside his kingdom, no matter what happens outside, there is no death, no harm inside his kingdom. You are untouchable inside it. अरे वाह माँ, Inside his kingdom, you are untouchable inside it. Amen. उसके किंगडम में Inside his kingdom, बिना मांगे without asking, चीजें आपको फॉलो करेंगे। things will follow you. और यही यीशु मसीह सिखा रहा था। उसने कहा जो लोग बाहर हैं राज्य के, And this is what Jesus was teaching. The people that are वो तो outside, जिंदगी भर वो मेहनत करे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, 24 घंटे पैसा 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 पैसा। the people that are outside his kingdom are laboring hard, sweat and toil. They are working, money, money, money. They want to get more. और संडे को भी ओवर टाइम कर लूंगी, 3,000 रुपए और मिल जाए। वो 3,000 से उसने फेवर ही हटा दिया अपने जीवन में, उसे पता I'll ही do नहीं। overtime on Sunday, so I get 3,000 more, and they got void of favor because of that extra. क्योंकि पैसा है दिमाग में, पैसा कमा। Money is on their वो mind. कहता है मेरे लोग जो मेरे राज्य के अंदर है, तुम ऐसा नहीं सोचोगे। He said, "My people who are in my kingdom, you will not think like that. जो मेरे किंगडम के अंदर के लोग हैं, तुम लोग ऐसा नहीं सोचोगे। Those who are inside my kingdom will not think like that." और तुम लोग क्या करोगे? What will you do? Can you put Matthew 6:33? मती 6:33. क्या लिखा है इसमें? But you, say me. लेकिन तुम, आपके लिए बोल रहा है पर यीशु मसीह, तुम। What do you do? इसीलिए पहले, बोलो पहले, बाद में नहीं, पहले। यानी हर चीज से पहले परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में नंबर 1 होना so चाहिए। first, before everything else, the kingdom of God should be the first thing in your life. Amen. But seek first. He is not saying that you don't seek other things, but he's saying seek first the kingdom of God. वो ये नहीं कह रहा दूसरी चीजों की खोज मत करो, कह रहा है लेकिन पहले परमेश्वर की राज्य की खोज करो। पहले तुम परमेश्वर के राज्य को, उसको, यानी ध्यान से सुनो, वो लोग जो परमेश्वर के राज्य को नंबर 1 रखते हैं, उनको कभी कमी घटी नहीं होगी किसी चीज की। The people who keep his kingdom number 1 will lack no good thing ever in life. I am giving you a secret. मैं एक रहस्य दे रहा हूं आपको। मैं आपको बता रहा हूं, कई लोग ऐसे हैं, आपको 10 लाख रुपए मिले There are many अचानक से, people 10 लाख रुपए मिले, who got 10 lakh rupees. आप वो 10 लाख में पूरा सबसे जल्दी सोचोगे मैं कहाँ जाऊं, छुट्टी कहाँ मनाऊं, ये पूरा अपने पे खर्च दोगे। Now in the 10 lakh, they'll first think, where will I go? Where will I spend my vacation? They'll spend all it on. Why? Because you are not kingdom minded. क्योंकि आप राज्य के लिए नहीं सोचते हो। मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं। I'm telling you the secret. अगर आपका दिल ये होने लग गया कि गॉड आई वांट टू बी अ बिल्डर इन द किंगडम, ऐसा फेवर आपके ऊपर आएगा ना उस राजा का। If your heart is so कि प्रभु मैं तेरे राज्य को बनाने वाला होना चाहता हूँ, you will have such favor of that king on your life. Amen. Come on, anyone who has this desire, lift up your hands. जो Say, कोई भी- Lord, I want to be a kingdom builder. जो कोई भी ये चाहत रखता है, कहे प्रभु मैं तेरे राज्य को बनाने वाला होना I चाहता हूँ। want to be a kingdom builder, Lord Jesus. प्रभु यीशु मैं तेरे राज्य को बनाने वाला होना चाहता हूँ। Use my life to build your kingdom. मेरे जीवन को ले और अपने राज्य को बनाए।
Amen. Can you imagine? सोचो इस बात को. इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब आप किंगडम की तरह सोचते हो तो आप एक अलग तरीके से सोचोगे. When you think like a kingdom, you will think differently. सोचो कि दुबई का राजा आपको बुलाए और बोले मैंने तुझे चुना है, Think that मैं अपना राज्य एक्सपेंड कर रहा हूं. अब that the king of Dubai एक आइलैंड मैंने ले लिया है और उस आइलैंड में मैं अपना राज्य, और मैं चाहता हूं तू उसको बना. आप तो जंप करोगे ऊपर और नीचे के, भैया राजा ने मुझे चुना है. अरे यहां तो राजाओं के राजा ने हमें चुना है. Amen. Imagine the king of Dubai calls you and says, I have an island which I want to build my kingdom on, and I have chosen you to do it. You will jump with happiness because the king has chosen you. Here, the king of kings has chosen us. Amen. अब ध्यान से सुनो, एक चीज और आपको सिखाता हूं. Hear carefully. उसका राज्य अदृश्य है, His kingdom is invisible. मगर उसके राज्य का जो पोस्ट है, जो चौकी है, वो विजिबल है. But the post of his kingdom is visible. जहां से वो डोमिनियन करता है. From where he, और उसकी exercises चौकी है dominion. उसकी कलीसिया. And his post is his church. आपने देखा जब इंडिया कश्मीर की लड़ाई हुई तो उन मिलिटेंट्स ने क्या किया, ऊपर पहाड़ी में जाकर एक पोस्ट बना दिया, वहां से वो रूल करने लगे. You saw how when there was a battle for Kashmir, the militants made a post up, and from there they started to wage war. सोचो इस बात को, खुदा यीशु मसीह ने कभी चेलों को नहीं बोला चर्च बनाओ. Jesus never told the disciples to make a church. उसने कहा He said, मेरे राज्य का प्रचार करो. preach my kingdom. क्यों उन्होंने चर्च बनाया? Why did they make a church? Because church is an integral part through which the kingdom expands. क्योंकि कलीसिया वो अहम हिस्सा है जिसके द्वारा उसका राज्य फैलता है. There are so, आज कितने सारे मसीह हैं जो कलीसिया को महत्व नहीं देते और फेवरलेस जिंदगी जी रहे हैं. There are so many believers that do not give significance to the church and live a favorless life. The way you treat his house is the way you treat him. जो व्यवहार आप उसके घर के साथ करते हो, उसके भवन के साथ करते हो, वो व्यवहार आप उसके साथ वो कर कहते रहे हैं हो. अंत के समय में मैं कहूंगा मैं बीमार था और तुम मुझे मिलने आए. वो कहेंगे प्रभु हम कब आए मुझे मिलने? क्या जब तुम मेरे घर में छोटे से छोटे के पास गए जो बीमार था, तुम मेरे पास आए मिलने के लिए. He said, in the end, I will say, when I was sick, you came and visited me. And you'll say, when did I visit you, Lord? And he will say, when you visited the lowest, the smallest, you visited me. Amen. कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? अरे कुछ खाने को